Hello students, myself Poonam and today I am going to teach you the very first poem of class 12th, My Mother at 66, composed by Kamla Das. My Mother at 66. See the beauty of the poem. The entire poem is written in a single sentence. You'll notice the full stop only at the end of the poem. See, if I talk about the genre of the poem, so this poem is written in the free verse. Free verse, I hope you understand, means there is no rhyme or no meter. See, this was just a fun fact only. Now let's come to the text of the poem from where the questions actually comes. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. See what we can analysis from the very first line. The poet Kamla Das, she is driving from her parents' home. और कहाँ जा रही है? She is going to Cochin, and it is talk about the last Friday morning. हालांकि the terms like when she was going, it is not asked. I saw my mother beside me. What she noticed when she's sitting in the car, she noticed that her mother is sitting beside her. उसकी mother उसके बराबर में बैठी है. And the most important thing, doze means sleepy. See, the mother is at the age of 66. See, so you can understand that mother is a little sleepy, and even जब सो जाते हैं तो हल्का हल्का कभी कभी मुंह खुल जाता है. In that way, her mouth is open. So what she noticed? She noticed mother is sitting beside her, and what is the state of the mother? She is sleepy, her mouth is open. Her face, the most important thing, ashen like that of a corpse. Ashen like that of a corpse. What she see? The thought comes to her mind कि उसका जो face है ना, उसकी mother का जो face है, that is ashen like that of a corpse, dead body. एकदम से क्या थॉट आता है उसके दिमाग में कि उसकी जो मदर है ना, उसका फेस बिल्कुल एशन मतलब एश लाइक ए लाइफलेस. एशन को व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, लाइफलेस. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आता है एक्चुअली कि उसकी जो मदर का जो फेस है उसको कंपेयर कर रही है कॉप्स से. उसकी मदर का जो फेस है वो किससे कंपेयर कर रही है? कॉप्स से. कॉप्स मीन्स डेड बॉडी. सी लाइक व्हेन वी हैव लाइक, ठीक है, when we are comparing two things we have for that two poetic devices. कंपैरिजन के लिए दो poetic devices, एक हमारे पास simile है और एक हमारे पास metaphor है. Just simple, like और as, if you are comparing two things by adding like or as, so it is simile. And the most important thing, when the question comes, so this will be the line and the question will be which poetic device is used in the last line. So you can understand like लगाए तो it means ये क्या हो गया? Simile. क्यों हो गया सिमिली? क्योंकि उसको मदर का जो फेस है उसको किससे कंपेयर किया? कॉप्स से. और कॉप्स से क्यों कंपेयर किया? वी शुड आल्सो नो बिकॉज हर फेस इज एशन. एशन मींस लाइफलेस दिख रहा है. देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑन अ फेस. व्हाट हैपेंड देन? द थॉट, जो मदर का थॉट तो एक तरीके से समथिंग दैट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन. मतलब मदर की डेथ का एक्चुअली नन इवन कैन थिंक अबाउट दैट. See what happened then? जैसे वो मदर का कंपैरिजन कॉप से करती है, then what happened? She realized with pain. What she realized? एकदम से realization होता है that she was as old as she looked. Actually ना देखो होता है क्या है, sometimes किसी पर्सन की एज एक्चुअल में उतनी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द हार्डशिप ऑफ द लाइफ उसकी फेस चेहरे से एज ज्यादा दिखती है. तो बट यहाँ क्या है, यहाँ द केस इज डिफरेंट. उसकी जो मदर की एज जितनी दिख रही है ना, एक्चुअल में एज है, हर मदर इज एट द 66. तो व्हाट शी रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक. वो उतनी ही ओल्ड है एक्चुअली जितनी वो दिख रही है. बट सून पुट दैट थॉट अवे. व्हाट शी डिड जस्ट टू इग्नोर दैट फैक्ट कि हर मदर इज अप्रोचिंग इन द डेथ एज. व्हाट शी डिड, शी पुट दैट थॉट अवे. उस थॉट को क्या करती थी? She diverted her mind from that point. उसके बारे में सोचना नहीं चाहती. And looked out at young trees sprinting, merry children spilling out of the hills. The very important fact of this poem. See, what she did? She put that thought away. उसने वो thought जो है दूर कर दिया अपने दिमाग से, मतलब डाइवर्ट कर लिया उसने माइंड. बट टू डाइवर्ट हर माइंड शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड. वो बाहर देख रही है. और बाहर क्या देख रही है? शी सी, यहाँ कॉन्ट्रास्ट है पोएम में. क्या है? कॉन्ट्रास्ट. सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, हाउ द पोइट हैज शोन कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम. एक्चुअली इनसाइड द कार और आउटसाइड द कार का जो एनवायरमेंट है दैट इज
totally opposite. Inside, her mother is sitting, who is in a very, at the age of 66, near to the death phase. But outside the car, what she look out at the young trees sprinting. What she see कि जो young trees है वो sprinting कर रहे हैं. Sprinting माने running. देखो होता क्या है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कार में बैठे हैं, ठीक है, और स्पीड से वी आर ड्राइविंग ऑन द रोड, और एक साइड जो ट्री की लाइन है पूरी, तो व्हाट फील कि जो ट्रीज है ना वो भी भाग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो स्प्रिंटिंग यानी कि यहाँ पे ट्रीज को क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया. तो हियर वी हैव पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ट्रीज को क्या किया गया, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज भाग रहे हैं, यानी यंग ट्रीज को क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया, यानी पर्सोनिफिकेशन. सबसे पहली बात यू शुड अंडरस्टैंड कि पोइट ने कॉन्ट्रास्ट कैसे दिखाया है. कॉन्ट्रास्ट कैसे दिखाया है? Inside the car, her mother is sitting in the death phase, almost near to the death phase. But outside the car, there's a life, activity, growth, young trees, sprinting, merry children, छोटे छोटे बच्चे, merry मतलब खुशी से, ठीक है. Merry children is spilling out of their home. They are coming out of their homes. घरों से बाहर आ रहे हैं. So this is the most important fact of this poem कि पोइट ने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है. और कैसे दिखाया है? वो एक कार के अंदर और कार के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो टोटली डिफरेंट है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे हम एयरपोर्ट पे कहीं जाते हैं तो होता है क्या, सिक्योरिटी चेक होता है, और जो भी हमें सी ऑफ करने जाता है वो बंदा वहीं रुक जाता है, और हम जो भी पैसेंजर जाने वाला है, एयरपोर्ट से ट्रेवल करने वाला है बाय प्लेन, उसे आगे जाना होता है. तो अभी द टाइम हैज कम जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी चेक चल रहा है एट द एयरपोर्ट. तो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर खड़ी है, ठीक है, सिक्योरिटी चेक हो चुका है, मदर इज स्टैंडिंग फार, और वो थोड़ा सा दूर जा चुकी है, ठीक है. आई लुक अगेन, दोबारा देखती हूँ, एट हर, उस पे. वेन का मतलब होता है जैसे पेल होता है, सिमिलर टू दैट ओनली. वेन इज लाइक हल्का सा वाइटिश है ना, फीका पड़ जाना चेहरा ऐसे कि ओल्ड एज में है मदर, तो उसका फेस जो वो थोड़ा डल हो चुका है. लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून. See, in the first phase, the poet has compared the mother with the corpse. Now she is comparing late winter's moon. As लगा है, just notice this, late winter's moon. क्या कह रही है? उसकी जो मदर का फेस है ना वो लेट विंटर्स मून की तरह है. लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर कर रही है? क्योंकि देखो सुनो, विंटर्स मून आई थिंक यू हैव सी, लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर कर रही है? क्योंकि लेट विंटर्स मून जो है ना वो हल्का सा फेडेड होता है, जब फॉग हो जाती है तो आपको दिखता है उसका जो ब्राइटनेस है वो क्लियर नहीं होती. तो यहाँ पे उसने मदर के फेस को किससे कंपेयर किया? लेट विंटर्स मून से, क्योंकि मदर भी जो है ना बिल्कुल लास्ट फेस में है, उसके फेस पे भी क्या है, वो डलनेस. कौन सी वाली डलनेस? जो लेट विंटर्स मून में होती है. तो अगेन सी, नोटिस दिस एज, मैंने बताया था अभी आपको कि लाइक और अगर एज लगाए तो हमारा अगेन फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमिली. I hope clear है. In the first paragraph, first phrase, the poet has compared the mother face with a corpse, like a corpse. So there was a simile. Again, she is comparing with the late winter's moon. As लाके compare किया, तो this is again simile. And felt that. और क्या करती है? Feel करती है. Old familiar ache. Old familiar ache means familiar ache. Familiar means I hope you understand. Familiar मतलब जिस चीज को हम पहले से जानते हैं. Ache means pain. तो क्या कह रही है? जब मैंने अपनी मदर को दोबारा देखा ना सिक्योरिटी चेक पे, आई फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक मतलब वही पेन, उसे फिर से दर्द फील होता है. और पेन कौन सा वाला? माई चाइल्डहुड फियर, द फियर दैट शी हैज एक्सपीरियंस इन द चाइल्डहुड. आप सब अपना अपना चाइल्डहुड रिकॉल करना. सी, जब बचपन में कभी होता था ना कि मम्मी से कहीं जा रही हैं तो इट वाज लाइक कि नहीं, चाहे मम्मी कहीं इवन यहाँ तक एक शॉप पे जा रही है, कहीं बाहर किसी छोटे से काम से जा रही है, बट वी आर ऑलवेज देयर टू इंसिस्ट मम्मी मुझे भी साथ चलना है. जैसे कि मतलब लाइक कि पता नहीं मदर कभी आएंगी लौट के कि नहीं आएंगी. सो इन दैट वे वो शी सी कि जब अभी मैं अपनी मदर से दूर जा रही हूँ ना, तो आई फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वही माई चाइल्डहुड फियर जो मैं बचपन में फील किया करती थी ना, द सेम फियर आई फील. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, सी यू सून अम्मा. अभी उसे पता है हर मदर इज एट द एज ऑफ 66 एंड इवन शी नो कि 66 ही अगर नॉर्मल एज अगर हम बात करें तो अराउंड 60 और 70 इट इज लाइक अ नॉर्मल एज नाउ डेज. तो उसे पता है कि मे बी पॉसिबल व्हेन शी विल रिटर्न नेक्स्ट टाइम, मे बी हो सकता है उसे अपनी मदर का फेस देखने को ना मिले, बट स्टिल
सी अब ऐसा तो नहीं है, मदर के आगे रोना धोना तो नहीं कर सकती. वो शी हैज टू जस्ट सी दैट ब्रेव फ्रंट इन फ्रंट ऑफ मदर. यहाँ पे क्या है, ये आयरनी है. आयरनी है. सी यू सून अम्मा. आयरनी कैसे है कि शी नो कि मे बी पॉसिबल है कि वो नहीं आए, शायद जब वो अगली बार आएगी तो शायद अपनी मदर से नहीं मिलेगी, बट स्टिल क्या कह रही है, सी यू सून अम्मा. तो यहाँ मदर के आगे आप इस टर्म को यू विल यूज इन द आंसर. शी हैज अ ब्रेव फ्रंट. ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ एक खत्म करती है. All I did was smile, smile and smile. See, smile, smile, smile. The same word is being repeated 3 times. तो जहाँ पे भी कहीं अगर same word repeat होता है तो again we have a poetry device that is repetition. Very simple. जहाँ पे same word repeat होता है that is repetition. Most of the time बच्चे confuse होते हैं alliteration और repetition में. Repetition जहाँ same sound, same word repeat होता है. Alliteration जहाँ पे consecutives आपकी sound जो है, जहाँ साउंड किसी भी वर्ड को स्टार्ट करते में जो साउंड्स होती हैं, दैट इज. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ क्लास 12th, माई मदर एट 66, composed by Kamra Das.